Hello, my dear students. I am your Zed sir, welcoming you in the new part for the new chapter, that is chapter number 8, Comparing Quantities for Standard 7. You had already studied this chapter with a new name in your previous class, that is रेशियो एंड प्रोपोर्शन. क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से आप अपने प्रीवियस क्लास में ये चैप्टर पढ़ चुके हैं. दिस इज समवॉट लिटिल बिट ऑफ एडवांस ऑफ दिस चैप्टर. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज. सो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ए. What we have to do? We have to find the ratio. हमें क्या फाइंड करना है? इसका रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं हम? This divided by this, this divided by this, this करके चला जाना है आपको. अब देखते हैं कैसे करते हैं. आपको याद होगी, एक बार रिकॉल करा देता हूं कि जब कभी भी रेशियो हम लेते हैं तो दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. ठीक है, अगर सेम यूनिट हुए तभी रेशियो पॉसिबल है. तो is it both the unit are same? No. Here is a paisa and here is a rupees. So what we will do? We will convert this. So 1 rupees is equal to 100 paisa. Clear? So I will multiply this 100 paisa with rupees 5. So rupees 5 multiplied by 100 is equal to 500 पैसा. तो क्या बोला? रुपीज 5 को अगर मैं 100 करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे 500 पैसा मिलता है. तो रुपीज 5 की जगह में क्या ले लूंगा? 500 पैसा. सो देयरफॉर 500 डिवाइड बाय, नाउ बोथ द यूनिट्स आर सेम. सी, सो 500 डिवाइड बाय 50, क्योंकि ये बीच में 2 है ना. So 50 is equal to 0 0 cut. Now 50 is divisible by 5. Yes, the 5 tens are 50. Clear? So 10, numerator 10 and denominator there is nothing. That means 1. So this is your ratio. You can write it like this: 10:1. Clear? Okay. Now moving on to next question. This is in kg and this is in gram. So we will convert this kg into gram by multiplying with 1000. ये सब conversion of unit you already studied in your previous class also, and I also explained in your third chapter conversion. So if I want to convert this kg into gram, so I will multiply this kg with 1000. So therefore 15 kg multiplied by 1000, it give me 15,000 gram. So in place of 15 kg, now I will write 15,000 gram. So therefore 15,000 divided by this 210. ठीक है, दोनों के यूनिट सेम हो गए. Now 0 0 cut. Now see, now we have to divide 1500 divided by 21. Okay, तो कैसे करेंगे? As I explained you, first of all we know that 21 is 7 3s are 21. Clear? Now 1500, is it divisible by 3? Let's try. So 3 5s are 15 and 20 will be added here. Yes, it is divisible. Now dividing this 500 divided by 7. So what we get? So we get 500 divided by 7. हमें क्या मिल गया? 500 divided by 7. Now we will write in ratio form, that is 500:7. Clear? Similarly, third one, this is in centimeter, this is in meter. Now I convert this meter into centimeter. So 9 meter multiplied by 100, it converted into centimeter. So 900 centimeter. Okay students, now in place of 9 meter I will write 900 centimeter. Therefore 900 divided by 27 हो गया.
Now 9 3s are 27. Okay, 9 1s are 9 and double 0. You get 900 divided by 9 possible है. So I will write here 100 divided by 3. So my answer is 100 jam 3. Similarly, fourth question, here is hours and here is a days. So if I want to convert days into hours, I will multiply this with the 24 because one day have 24 hours. ये तो आपको पता होगा, है ना? So 30 days multiplied by 24. So we get the answer in hours form. So 3 4s are 12. And 1, 3 to 6 and 7 and 0. Now we convert it into hours. So in place of 30 days, I will write 720 hours divided by 36. हो गया? Now let's divide the 720 with 36. So we will convert 6 6 are 36. Possible है? अभी और इसको छोटा करता हूँ मैं. 3 2 जा 6 हो सकता है, कर दिया और छोटा कर दिया, आपको सिंपल हो जाएगा. नाउ लेट्स डिवाइड इट. सो 3 2 जा 6 plus 1, so it is divisible. 3 2 जा 6, 1 here, that is 7. Now it become 12. So 3 4s are 12 and 0 will added over here. Now it is divisible by 2. Yes. But it also divisible by 6 also. 6 4s are 24. So I will divide with 6. 6 4s are 24 and 0 over here. Clear? Now again this 40 is divisible by 2. So 2 2s are 4 and 0. So my answer is 20 in numerator and denominator there is nothing. That means 1. So I can write 20 jam 1. This is my answer. Okay students, write down this from the board so I can move forward. This one is our question number 1. Okay, ये हमारा question number 1 है. अभी question 2 में आएंगे हम, उसके बाद question 2 करेंगे, ठीक है? Now students, coming on to the next question, that is question number 2. So I written the data on the board. Before that, read the question. In a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. So they have 3 computers only and they have 6 students. So 6 students using the 3 computer. ऐसा बोल सकते हैं कि 2 स्टूडेंट एक कंप्यूटर पर रहेंगे तो 3 स्टूडेंट के लिए, सॉरी 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर इनफ है. इन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन दिया है. How many computer will be needed for 24 students? तो अगर मैं 24 स्टूडेंट कर दूं तो मेरा कंप्यूटर कितने हो जाएंगे, मुझे कितने कंप्यूटर चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ जो डेटा चाहिए मैंने लिख दिया है. 3 कंप्यूटर के लिए इक्वल टू 6 स्टूडेंट है, तो 24 स्टूडेंट के लिए मुझे कितने कंप्यूटर चाहिए? क्लियर? बहुत ही आसान है. देखो मैथ्स बहुत इजी है और मैं जिस तरीके से आपको कर रहा हूँ बहुत इजी वे से करा रहा हूँ, आराम से आ जाएगा. देखिए नाउ एज आई टोल्ड यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है. मल्टीप्लाइंग दिस बोथ नंबर, कि दोनों नंबर सामने सामने है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको न्यूमरेटर में रख दो. 3 मल्टीप्लाई बाय 24. अब 6 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क, सामने कोई नंबर नहीं है, क्वेश्चन मार्क उसको डिवाइड में रख दो. हो गया? 6 4s are 24. Cuttable? Yes. Now 3 4s are 12. So we need a 12 computer. कितना आसान है देखिए, कितना इजी से करा रहा हूं. We need 12 computer for 24 students. Simple calculation. This max is you are using in day-to-day life also. अब आप बार बार यूज करते होंगे, आप भी यूज करते होते हैं कभी कभी. तो कोई चीज लेने जाते हैं, नाश्ता लेने जाते हैं, तब कैलकुलेट करते हो कितने भाई बहन मेरे साथ में, कितने पैसे मुझे चाहिएंगे. अगर 2 रुपए की मैं टाइम पास ले रहा हूँ, मैं 5 लोग हैं तो कितने चाहिएंगे, 10 रुपीज चाहिएंगे मुझे. यही तरह कैलकुलेशन है, बस थोड़ा वर्डिंग में आ गया है. ठीक है बच्चा? Now coming on to the third question, that is, read the question. Okay, population of Rajasthan is 570 lakh. मतलब वहां की भीड़ भाड़
कितने लोग हैं? 570 लाख लोग हैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लोग, मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यूपी मींस उत्तर प्रदेश, योगी सरकार, ठीक है, वहां पे कितनी है? 1660 लाख, दैट मींस 1660 लाख की पॉपुलेशन कहां पे? यूपी में है। Now coming on to the area. Area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square. Area of Rajasthan is equal to 3 lakh kilometer square. मतलब कितना फैला हुआ है राजस्थान? तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। Now coming on to area of UP. तो area of UP is 2 lakh किलोमीटर स्क्वायर। So 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि जो यूपी का एरिया है बहुत कम है राजस्थान के एरिया कंपेयर में, पर राजस्थान पॉपुलेशन कम है यूपी के कंपेयर में, पता चल रहा है ना। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दिस स्टेट। सो नाउ फॉर बोथ दिस स्टेट वी हैव टू फाइंड द पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन, मतलब पर किलोमीटर, ये 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है तो पर लाख मतलब 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं उसे पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दिया 570 लाख इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो रहा है। तो पर किलोमीटर मतलब 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितना पॉपुलेशन होगा। देखो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन मिलजुल रहा है ना, पॉपुलेशन कितना होगा। तो यहां पे कैसे किया था वैसे यहां पे करें क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट 570 डिवाइड बाई 3। सो डिवाइडिंग 570 बाई 3, so 3 1 जा 3, 3 2 6, so 3 1 जा 3 and 2, बाद में 9 3 जा 27 and 0 will become up, so 190 lakh पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इतना पॉपुलेशन है 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 190 लाख का पॉपुलेशन है। इतना क्लियर हुआ। कमिंग ऑन टू द यूपी, राजस्थान हो गया, अब यूपी पे आते हैं। अब ऊपर लिख लीजिएगा फॉर यूपी, फॉर राजस्थान एंड दिस इज फॉर यूपी, इतना अब लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर यूपी दिस इज फॉर यूपी। So similarly we will cross multiply over here, तो 1660 divide by 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। मैंने बोला था मल्टीप्लाई 1 दिखाओ ना दिखाओ चलेगा। Now dividing 1660 by 2, that is 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 and 0, that is 830 lakh पर किलोमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कहां पे सबसे कम बस्ती है मतलब लोग रहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 190 है, यहाँ पे 830 है, मतलब लेस बोला मतलब राजस्थान। सो वी कैन राइट दैट राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। स्थान इज लेस पॉपुलेटेड। कहां से पता चला? तो इस पे से पता चला आपको। ये 190 है, ये 830 है, सो 190 इज लेस देन 830, so we can get this answer. So students, now moving on to the next exercise. Before that, write down this from board. Now students, coming on to the next exercise, that is exercise number 8.2. Over here there is a new term you can call as a percentage. क्या बोलेंगे उसे हम? Percentage. If in your question they ask you to convert this into percentage form, so you will multiply by 100. Clear? और percentage का यूनिट और उसकी सिंबल क्या है? एक ऑब्लिक और यहाँ पे 2 डॉट। दिस इज ए साइन ऑफ परसेंटेज। पता चला? अब आगे बढ़ते हैं। The first question of exercise 8.2, that is question number 1. The first question A is 1 by 8. What? 1 by 8. Now what I have to do? इस नंबर का मैं क्या करूंगा? So convert the given fractional number to percent.
ये फ्रैक्शन नंबर में, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? परसेंट में करूंगा। तो मैंने आपको बोला था कन्वर्टिंग टू परसेंटेज, दैट मींस मल्टीप्लाई बाय 100, दैट फोर 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। तो मैं अब इसका आंसर लिख दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा? देखते हैं। ये हो गया 4 2 जा 8 हो गया, यस। 2 5 जा 10 एंड 0, क्लियर। नाउ डिवाइड बाय दिस 4 is 2 2 जा 4, now 2 2 जा 4 and 1 2 5 जा 10, क्लियर। नाउ 25 डिवाइड बाय 12। अब मुझे क्या करना है? 25 डिवाइड बाय 12 करना है। 12 नहीं 2 करूंगा कि बच्चा 2। तो माय आंसर विल बी 12.5%। व्हाट? 12.5% आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 100 एंड आफ्टर कैलकुलेशन। देखो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ठीक है। आफ्टर दिस यू विल गेट योर आंसर दैट इज इन द परसेंटेज फॉर्म। Don't forget to write this. Coming on to next question, that will be C. Okay, A I had done here, B one you have to do it by yourself in your homework. I am doing C. Question C क्या है? 3 divided by 40. So converting to percentage, that means 3 divided by 40 multiply by 100. 0 0 cut. What remain here? 10, here 4, here 3. Now 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. That means nothing is divisible by 2, so I will write directly here. 5 3 जा 15. Divide by what is remaining in denominator? 2. Now dividing 15 divided by 2, आपको डिवीजन करना है, ठीक है। तो you will get your answer, that is 7.5. okay, and you had multiply with 100, that means your answer is in percentage. पता चला? Now coming on to the next question. Now B and D that you have to do it by yourself in your homework. Practice जरूरी है, max practice ही मांगता है। Now coming on to next question, that is question number 2. Over here, that is first question is convert the given decimal to percentage. So I have a decimal number, okay. Now I have to convert this into a percentage form. तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, मतलब मेरा आंसर परसेंटेज में आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स there is 2 0, so this decimal will be go on to the right side. कितना डेसिमल आगे जाएगा? जितने जीरो होंगे उतना डेसिमल आगे जाएगा। अगर यहाँ पे 3 0 होते तो 3 डेसिमल आगे जाता। यहाँ पे 2 0 है, मतलब ये डेसिमल 2 इंटीजर आगे आता है, 1 और 2। तो मेरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स 65 डायरेक्टली यू कैन राइट, ओके। एंड दिस इज इन परसेंटेज। अब यहाँ पे डेसिमल हो गया, यहाँ पे 0, तो 65.0% या 65 लिखो, दोनों राइट ही है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ना कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी। मैं कौन सा करूंगा? डी करूंगा। सो दैट इज 12.35. This is in decimal form. I have to convert in percentage. तो मैं multiply by 100 करूंगा। So 12.35 multiply by 100. Okay. As I told you, there is 2 0. So this decimal will be go 2 times. 2 इंटीजर को पार करके जाएगा, ऐसे ऐसे छलांग मार के जाएगा। पहली छलांग, दूसरी छलांग, एक पहाड़ दूसरा पहाड़, छलांग मार लिया, डेसिमल यहाँ पे आ गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1235%। पता चला क्या किया? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। मैं जिस तरह से आपको करा रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूँ ना, अटपटा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। प्रिपेयर रखना इसको।
Now coming on to next question. Before that, I had completed A and D. You have to do it by yourself. B and C. B and C you will do it by yourself. Now question number 3. So question number 3. First question, that is, they give one circle, okay, and over here they cut this circle in the 4 part and they dark this part, one part. उन लोगों ने एक पार्ट को क्या कर दिया, डार्क कर दिया है, ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग टू अस एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड. अब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं ये लोग कि इसमें एस्टिमेट करो कितना सर्कल का कितना पार्ट कलर किया हुआ है, उसका जो आंसर आता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो. बस इतना मतलब है इस क्वेश्चन का. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, हाउ मच पार्ट ऑफ दिस सर्कल इज कलर्ड. सो पहले देख लो कितने बॉक्स है, उसे काउंट कर लो. 1 वो था कलर्ड एंड अनकलर्ड, जो कलर किए हुए हैं और जो कलर नहीं किए हुए दोनों को काउंट करना है. 1 2 3 4 है, डिनोमिनेटर में 4 कर दो और उसके ऊपर एक लाइन कर दो हॉरिजॉन्टल. हो गया. नाउ राइट हाउ मेनी बॉक्स आर कलर्ड. ओनली 1 बॉक्स आर कलर्ड, राइट, ऑन न्यूमरेटर. सो यू गेट योर आंसर, दैट इज 1/4. 1/4 हो गया. नाउ कन्वर्ट दिस 1/4 इनटू परसेंटेज. सो आई टोल्ड यू मल्टीप्लाई विथ 100. सो देयरफॉर 1/4 multiply by 100. So 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0. Now 50 divide by 2. तो यहाँ पे आपने देखा होगा 50 डिवाइड बाई 2 नहीं है, यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 2 है. तो 50 डिवाइड बाई 2 मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 25. कैसे है देखिए, 2 2s are 4, okay, and 1 here, that means 5, and 2 5s are 10. That means my answer is 25%. कितना आसान है ये, बहुत ही सिंपल है ना. पहले काउंट कर लो कितने बॉक्स है, उसको डिनोमिनेटर में रख दो, कितने कलर किए हुए उसको ऊपर लिख दो. हो गया. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो तो हमने यहाँ पे सीख लिया. मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है. Now there is another question, 2 and 3. That one you will do it by yourself. I had done one sum. Now coming on to the question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है, फाइंड, सिर्फ लिख दिया फाइंड. ढूंढो, क्या ढूंढना है बताता हूं. 15% ऑफ 250. 15% ऑफ 250 मतलब 250 का 15% लेना है हमें. मतलब 250 का 15% कितना होता है वो पूछ रहा है वो. 15% ऑफ 250. तो हम क्या करना है, बहुत ही आसान है. आपको सिंपली यही करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. अब ये परसेंटेज है, अगर हमें परसेंटेज लाना होता है, इफ वी वांट द नंबर इन परसेंटेज, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 100 एंड वी गेट इन परसेंटेज. We are multiplying with 100 and we are getting this percentage. Okay, and if we want to remove the percentage, what we will do, we will divide by 100. Similarly we will do here, I want to remove this percentage. Okay, so 15 will be divided by 100 and 15 will be multiplied with 250. right here 250. बहुत ही सिंपल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, परसेंटेज को निकालना है, डिवाइड बाय 100 कर दो. परसेंटेज जब लगाना था तब 100 से मल्टीप्लाई करते थे, परसेंटेज जब निकालना है तो डिवाइड बाय 100 करो. मैं 2 से 3 बार रिपीट किया, अब तो दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना. बहुत ही आसान है. मैक्स 0 0 कट. क्लियर. नाउ 2 5s are 10, 5 5s are 25. yes or no? So what is the remain above? 5 5s are 25, 2 carry, 5 1s are 5, 6 and 7, 75 divided by 2. So this is my answer. So this is in fraction form, so I will convert it into decimal form, that is 37.5. आपको फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में रखिए, आपको डेसिमल रखना है तो डेसिमल रखिए. तो 250 का 15% कितना होता है, 37.5. अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि स्टूडेंट्स मेरे पास 100 रुपये है, उस 100 रुपीज में से मैं आपको 15% दूंगा, तो क्या करोगे आप, 100 रुपीज में से आपको 15% दूंगा तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, डिवाइड बाय 100 कर लो, मतलब आपको 15 रुपए मिलेंगे.
ये क्वेश्चन वही है। अगर समझ लीजिए मेरे पास 250 रुपीज है, उस 250 रुपीज में से मैं आपको 15% दूंगा आपको पार्टी करने के लिए। दूसरा क्या, आज मेरा बर्थडे से समझ लीजिए मेरा बर्थडे आपको मैं 15% दे रहा हूं मेरे 250 रुपीज में से। तो 250 में से 15% दूंगा, मतलब क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं पर स्टूडेंट को 37.5 रुपीज दूंगा। पता चल गया क्या किया हमने, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको समझा दिया कहां पे यूज हो रहा है। ये मैक्स हर जगह यूज होता है, हर एक जगह पे यूज होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैक्स कहां यूज होता है, मैक्स हर एक जगह पे यूज होता है। आप पूरा दिन मैक्स के साथ ही होते हो, ठीक है। So the remaining questions are B, C, D that you will do it by yourself. बहुत easy है, देखो मैंने बता दिया आप कैसे करना है। Okay, so B, C and D of question number 4 that you will do it by yourself. Okay students, so write down this from board so I can move forward. Now students, coming on to the next question, that is question number 5. Find the whole quantity. whole quantity मतलब पूरी quantity हमें find करनी है। तो what is the question is A1, 5% of it is 600। अब इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 5% 600 रुपये होते हैं, 5% 600 रुपये होते हैं, तो 600 रुपये आए कहां से, तो कुछ बड़ी फिगर तो होगी ना, तो उस बड़ी फिगर को हमें ढूंढना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट वी विल डू, 5% ऑफ इट इज 600। इफ आई आस्क यू, इफ आई टोल्ड यू दैट, वो पहले क्वेश्चन था क्वेश्चन 4, उसका ये ऑपोजिट है कि आपको मैंने 5% दिए, वो 600 रुपये होते हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे सही ना, मेरे 5% आप मेरे को दे रहे हो 600 रुपये, तो टोटल मुझे कितने मिल रहे हैं, वो आप देखोगे तो कैसे फाइंड करेंगे। सो 5% आई विल कन्वर्ट दिस परसेंट इनटू नॉर्मल नंबर, दैट इज डिवाइड बाय 100, multiply with x, okay, multiply with x, that we have to find the whole number, okay, whole quantity, and is equal to 600। it is बोला ना, तो इक्वल टू आ गया 600, बहुत ही सिंपल है। देखिए now what we will do, now this 100 will be go on to the next side of the equal to sign, equal to की साइन के नेक्स्ट साइड चला जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, तो 5 ये मल्टीप्लाई x है इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। नाउ दिस विल बिकम ऑन टू denominator, now this will come on denominator, that it become x is equal to 600 multiplied by 100 divided by 5, this come at denominator। now it become 5 2s are 10 and 0, clear। so it become 6 2s are 12 and how much 0, 1 2 3 0, 1 2 and 3 0, so x is equal to 12,000। so from this I can say that के 5% of 12,000 it is equal to 600। 12,000 का 5% करूंगा तो मुझे 600 रुपए मिलेंगे। पता चल गया ना कि मैंने आपको 600 रुपए किस तरीके से दिए, 5%, कि मेरे पास 12,000 रुपए थे, क्लियर। टेकिंग अनदर क्वेश्चन, दैट इज 70%, D1, 70% of it is 14 minute, क्लियर। 17% ऑफ इट इज 14 मिनट, तो 17%, 17%, 70% मिल रहे 14 मिनट के, मतलब 14 मिनट मुझे मिल रही है, तो 70% दे रहे हैं मुझे वो। तो टोटल कितनी मिनट थी, उसमें से मुझे 70% दे रहे हैं वो फाइंड करूंगा। तो सिमिलर इसके जैसा ही करना है, इस परसेंटेज को निकालना है। तो 70 डिवाइड बाय 100 कर दो, फिर मल्टीप्लाई बाय x कर दो एंड इक्वल टू 14 ले लो। क्या लेना है, इक्वल टू 14 लेना है। नाउ सिमिलरली दिस 100 विल बी गो ऑन द नेक्स्ट साइड, दैट इज 70 x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ये यहां पे आके इक्वल टू साइन के, वो तो आप सीख गए, फिर भी सिखा रहा हूं। नाउ दिस 70 विल बिकम ऑन टू द डिनोमिनेटर ऑफ द इक्वल टू साइन, ठीक है। जो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, जब इक्वल टू साइन के आगे पीछे होता है ना, ये इक्वल टू साइन है बीच में। तो x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70। यस स्टूडेंट्स, 0 0 कट, 7 2 जा 14, clear। so there is nothing to divide and to multiply, only we have to multiply। so 10 2 जा 20 and here is x। so मेरे पास कितना था, 20 मिनट था, कितना था
मेरे पास 20 मिनट था, उस 20 मिनट्स में से आपको मैंने 70% मिनट दे दी। 70% मिनट मतलब 40 मिनट आपको मैंने दे दी, तो पता चल गया मेरे पास कितनी मिनट थी। सिमिलरली हर एक सम को आपको वैसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, बी, सी एंड टी दैट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ फॉर योर प्रैक्टिस। सिंपल, 70 डिवाइड बाय 100 कर लो, परसेंटेज निकल जाएगा, मल्टीप्लाई x कर लो, इक्वल टू 40 मिनट ले लो। अब मल्टीप्लाई x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट इज हमें दिया है, मतलब हमें आंसर दे दिया है, हमें वोल वैल्यू फाइंड, मतलब टोटल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई x कब करेंगे, यहाँ पे इट इज दे दिया है ना, तो आपको सिंपल कर देता हूं, इट इज दिया है मतलब मल्टीप्लाई x कर दो। उसमें क्या था, 5% ऑफ कुछ हमें वैल्यू दी थी, तो हमें आंसर निकालना था, उसमें x मल्टीप्लाई नहीं करना। So students, here I think I had explained very well to you, and you will do it by yourself, the homework which I given to you. So till then, next video I am taking leave. Bye bye.